یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اللہ السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہندو برہم اینڈ کربلا، واقعہ کربلا۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے، اپنے رائے کمنٹس میں لازمی دیکھیں۔ ہندوستان کا کربلا اور امام حسین سے کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال یقیناً ہر کسی کو چونکا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے جو ہندوستان سے کربلا اور امام حسین کے ساتھ ہندوستان کے لگاؤ اور محبت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مرکزی کردار ہے حسینی برہمن۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک ایسا واحد المیہ ہے کہ جس کا رد عمل 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کربلا آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی معجز نما ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی سحر آفریں ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ کربلا صدیوں سے لکھی جا رہی ہے۔ ہمیشہ اس میں امام حسین سے محبت کی بات آتی ہے تو حسینی برہمنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دراصل شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو غم حسین میں ہر سال اشک بار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ ہمارا حسین سے عشق ہے، محبت ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں، وہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود ہندوؤں کا یہ گروہ محرم کی رسموں میں حصہ لیتا ہے اور خود کو حسینی برہمن کہتا ہے۔ یہ حسینی برہمن ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے سندھ میں پائے جاتے ہیں، کئی نسلوں سے اپنے طریقوں سے غم حسین منا رہے ہیں۔ دراصل ہر سال محرم میں حسینی برہمن بھی موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ جو ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے کربلا کے رشتے کی کہانی سناتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسینی برہمنوں کے تعلق سے کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے، بلکہ یہ روایات اور ورثے میں ملے واقعات کی روشنی میں ہی ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ شیعہ عالم مولانا ظہیر عباس رضوی کہتے ہیں کہ تاریخ میں حسینی برہمن کے متعلق دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، جب امام حسین کو کربلا میں اہل و عیال سمیت گھیر لیا تو امام حسین نے چند لوگوں کو خطوط لکھے۔ دوسرا خط برِ صغیر میں ایک ہندو راجہ سمر گپت کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ابھی ایک لشکر کربلا روانہ کیا، مگر جب یہ لشکر کربلا پہنچا تب تک امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ اسی لشکر سے کچھ لوگ مارے گئے، کچھ وہیں بس گئے اور آج بھی کوفہ میں اہل ہند کے نام سے محلہ ہے۔ کچھ واپس ہندوستان چلے آئے اور حسینی برہمن کہلوائے۔ یہ لوگ ہر سال محرم میں امام پاک اور اپنے لوگوں کا سوگ مناتے ہیں۔ جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندو تاجر تجارت کی غرض سے اسلامی دارالحکومت کوفہ آتے جاتے تھے۔ کچھ آباد ہو گئے اور ان کے نام سے اہل ہند کا محلہ آج بھی آباد ہے۔ ان میں ایک ہندو تاجر راہب دت تھا جو عراق میں کہیں آباد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام حسین کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے راہب دت کو 7 بیٹے عطا کیے۔ جب راہب دت کو امام پاک کے محاصرے کا علم ہوا تو اپنے 7 بیٹوں اور چند ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کی مدد کے لیے نکلا۔ راستے میں کسی جھڑپ میں اس راہب دت کے بیٹے اور ساتھی شہید ہو گئے۔ راہب دت مغموم ہو کے واپس اپنے وطن پنجاب کے علاقے سیالکوٹ آ کر آباد ہو گیا اور بعد میں دت قوم جموں، گوالیار، راجستھان، دہلی، ممبئی میں آباد ہو گئی۔
यह है रिवायत की बुनियाद पर इमाम हुसैन के साथ हिंदुओं का रिश्ता या हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी। मौलाना ज़हीर अब्बास रिज़वी कहते हैं कि इस अलमिया से कबल इमाम हुसैन ने जब सुलह के तहत कूफा से बाहर निकलने की बात की थी तो उन्होंने हिंदुस्तान का रुख करने का इरादा जाहिर किया था। उस वक्त उनके सामने कई ममालिक थे, लेकिन इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया था, यह हैरानकुन था। अगर हम बात करें ब्राह्मण तत्व की तो वो तारीख में हमेशा जंगजू रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी और मुग़ल बादशाहों से उनके मार्के तारीख में मिलते हैं। ये तकसीम हिंद से पहले सियालकोट, गुरदासपुर, शिमला और हरियाणा में काफ़ी तादाद में आबाद थे। मशहूर बॉलीवुड अदाकार सुनील दत्त, संजय दत्त हुसैनी ब्राह्मण हैं। तारीख में दरियाई सिंध के बासियों का इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहने का तज़किरा मिलता है। हुसैनी ब्राह्मण की हकीकत के बारे में तारीख़ी शवाहिद या सबूत फराहम किए जाने मुश्किल हैं, क्योंकि हुसैनी ब्राह्मण की तारीख़ ख़ानदानी रिवायात और विरसे में मिलने वाली कहानियों से तश्कील में आई है। हुसैनी ब्राह्मण के मुताबिक उनके आबाओ अजदाद मैदान करबला में इमाम हुसैन के शाना बशाना लश्कर यजीद से लड़े। इस सिलसिले में बरे-सग़ीर के मारूफ दानिश्वर इंतज़ार हुसैन ने अपने अंग्रेज़ी कॉलम ब्राह्मण इन करबला में लिखा है कि वो भी पहले हुसैनी ब्राह्मण को सिर्फ हिंदू अफसाना ही समझते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को झुटला दिया। जिस पर एक खातून प्रोफेसर नोनिका दत्त ने उन्हें बताया कि वो खुद हुसैनी ब्राह्मण है। उनके जद अमजद राहब दत्त अपने 7 बेटों और दूसरे ब्राह्मणों के साथ मिलकर इमाम हुसैन की जंग में हिस्सा लिया। उनमें से एक यानी राहब दत्त बचकर वापस आए। वो अफ़गानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए और सियालकोट के एक गांव के मुकाम पर आबाद हुए। तकसीम के बाद ये ख़ानदान हिंदुस्तान चला गया और ये लोग मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। खातून प्रोफेसर के मुताबिक मशहूर फिल्मी अदाकार सुनील दत्त का ताल्लुक भी इन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों के ख़ानदान से है, जिसकी तस्दीक फिल्मी अदाकार मनोज कुमार ने भी की। बल्कि नरगिस के वालिद भी पहले हुसैनी ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान हो गए थे। इंतज़ार हुसैन ने नोनिका दत्त से पूछा कि क्या आप लोग मुसलमान हो गए हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, हम हिंदू ब्राह्मण ही हैं। वो मुहर्रम के दिनों में हुसैन का मातम भी करते हैं और अपने शहीदों की याद भी मनाते हैं। हुसैनी ब्राह्मणों की रिवायात के मुताबिक उनके अजदाद अरब से तिजारती ताल्लुकात रखते थे। दौरे नबूवत से पहले जो तिजारती काफ़िले सिंध से मक्के जाते, उनमें ये हिंदू ब्राह्मण भी गए थे, जबकि दत्त ख़ानदान हिंदुस्तान के ताजरों में शुमार होता था, जो हिंदुस्तान से मसाला जात, अतरियात और कपड़ा वगैरह लेकर दूसरे मुल्कों को जाते और फ़रोख्त करते और वहाँ की सौगात हिंदुस्तान लाते। सन 61 हिजरी में यह काफ़िला, जो तकरीबन 300 ताजरों पर मुश्तमिल था, सफ़र करता हुआ इराक़ के शहर कूफा पहुँचा और चंद दिन क़याम करके अपनी अशिया वहाँ फ़रोख्त की और वहाँ से अगली मंजिल के लिए फिर रवाना हुआ। जब यह काफ़िला कूफा से बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ फ़ौज तैनात है और किसी तरफ भी रास्ता खुला नहीं है। इस काफ़िले को वहीं रोक लिया गया। काफ़िले वालों ने फ़ौजियों से पूछा कि क्या माजरा है, तो उनको बताया गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हुसैन बिन अली ने बगावत की है, लिहाजा उनसे जंग की जाएगी। काफ़िले के सरदार ने कहा कि अगर तुम हमें आगे जाने नहीं देते तो वापस कूफा जाने दो, ताकि हम इख्तिताम जंग तक अमन से रह लें। फ़ौजियों ने कहा कि अब यह मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें वापस जाने दिया गया तो तुम लोग कूफा के लोगों को जासूसी करोगे, इसलिए अब तुम वापस नहीं जा सकते और जंग के खात्मे तक यहीं रुकोगे। चारों नाचार ये लोग वहीं रुक गए। जंग हुई और जंग की खबरें उन लोगों को भी मिलती रहीं। हर हस्ती की शहादत और शुजात के किस्से ये लोग सुनते रहे। उन लोगों को इमाम हुसैन और उनके हक परस्त रफ़क़ा से मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हुई। जब उन लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत का सुना तो उनसे अपने जज्बात पे काबू न रहा। राहब दत्त और उसके 7 बेटों और 2 साथियों ने तिजारती काफ़िले में अपने साथियों को अपना सामान दिया और ख़ुद इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए करबला तशरीफ़ ले गए। इस ग्रुप ने करबला में इमाम हुसैन से मुलाकात की, उनकी तरफ से इस जंग में शिरकत की। राहब दत्त के 7 बेटे बुगंदर सिकन, राकेश शर्मा, शासराय, शेर खान, रायपन, राम सिंह, धारू पूरो और दोनों साथी करबला में कुर्बान हो गए, जबकि राहब दत्त को गिरफ्तार किया गया। बाद में रिहा करके काफ़िले वालों के सुपर्द किया गया, जो उस वक्त वहीं पर मौजूद था।
हुसैनी ब्राह्मण की रिवायत में है कि रहबदत करबला से निकलकर इमाम हुसैन के ख़ानदान के लोगों से भी मिले। जब उसने उन्हें बताया कि मैं असल में ब्राह्मण हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब तुम हुसैनी ब्राह्मण हो और हम तुमको याद रखेंगे। जब राहिब दत्त वापस पहुंचा तो वादी सिंध में हिंदुओं का एक नया ग्रोह पैदा हुआ जिसका नाम हुसैनी ब्राह्मण था। ये हिंदू हैं मगर अपना ताल्लुक इमाम हुसैन से जोड़ते हैं। हुसैनी ब्राह्मण आज भी मौजूद हैं और हर साल मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला की याद मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे तारीख से साबित नहीं किया जा सकता, मगर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से ये लोग सिंध और बरे सगीर में मौजूद हैं। इनके विरसे की रिवायात और कहानियाँ इसको ठोस बना देती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी। दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।